for your guidance and shouldering this responsibility to us. Sir, you would be glad to know that we have received more than 200 registrations. I request my fellow colleagues to join us for this release of 7 year. We are planning a paper presentation session also. Mail will be dropped to the participants regarding the schedule of paper presentation. So now I request all my fellow colleagues to please join us for this release of 7 year. लो तुम भी लो ये लो हो गया खींचो भाई फोटो खींच रही है कि नहीं थैंक यू Thank you once again. I assure all the participants that we will be dropping mail to them regarding their schedule. I thank you all, my deep gratitude and respect for Honorable Vice Chancellor Sir. Now moving towards our next session, which is plenary. We have 3 plenary speakers. Yes, Professor Kapil Kapoor sir will be joining. The moment he will join, we'll give him the entry and he will be presenting his and now moving towards our next session, which is in which we have 3 speakers. Professor N.K. Pandey sir from University of Rajasthan, Professor S.K. Sharma sir, Allahabad University, Prayagraj, Professor Attu Mahapatra, Central University of Gujarat, Gandhinagar, and Professor B.L. Bhadani sir, Aligarh Muslim University, Aligarh. So, before moving towards this session, I now invite Dr. Pragati Sopti for vote of thanks. On behalf of Department of English, Maharaja Ganga Singh University and Department of English and Foreign Languages, Central University of Haryana, Mahendragarh, I express my profound gratitude to all our guests for gracing the inaugural session and sharing with us their erudite views. We are greatly encouraged by your gracious presence and immensely benefited by your enlightening ideas. Thank you all once again, and we look forward to an extremely productive 2-day discussion. We will be starting with our first plenary session. I welcome you all once again, and the moderator of session would be Dr. B.L. Bhadani, former head and professor of history from Aligarh Muslim University. Dr. Bhadani's research areas include medieval history with special emphasis on Indian culture and heritage. He has to his credit over a dozen of books and many articles in journals of repute. We have 3 speakers for the session. Our first esteemed speaker is Professor N.K. Pandey, Dean, Faculty of Arts, University of Rajasthan. Professor Pandey has been Director of Central Hindi Institute, Agra from 2015 to 2020. His areas of interest include Adikalin Hindi Sahitya, oral literature and folk literatures of Northeast India. I request you, sir, to bless us with your views. भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इंग्लिश डिपार्टमेंट द्वारा ये 2 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है।
आज के इस सत्र में उपस्थित प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी, प्रोफेसर BL भदानी जी, प्रोफेसर मिश्र जी और इन संपूर्ण कार्यक्रमों को देख रहे, सबकी व्यवस्था कर रहे, आयोजन कर रहे प्रोफेसर SK अग्रवाल तथा प्रोफेसर सीमा जी, बहुत ही अच्छे विषय पर इन 2 दिनों का सेमिनार आयोजित है। प्रायः सेमिनार के दौरान अनुवाद जैसे विषय पर ध्यान कम जाता है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है, केवल इंग्लिश से हिंदी नहीं, इंग्लिश से समस्त भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में, और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी का अनुवाद। अंग्रेजी का भी जो साहित्य आज हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा अन्य भाषाओं के विद्वानों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा। और इसके अलावा जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत पीछे जाकर पोएटिक्स में प्लेटो और अरस्तु को, वे लोग अंग्रेजी में नहीं लिख रहे थे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर को समृद्ध बनाने में पूरे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य ही नहीं, अंग्रेजी के समस्त विषयों को जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है उसको समृद्ध बनाया और आज भी बना रहे हैं। विज्ञान की जो बेहतरीन पुस्तकें हैं, लॉ की, मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, इंजीनियरिंग की, वे सब ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं लिखी गई है या अमेरिका के लोगों ने उसे नहीं लिखा है। अंग्रेजी बोलने वाले जो 3.5 देश हैं, उन देशों के लोगों ने ही केवल और केवल इंग्लिश को एनरिच, समृद्ध नहीं बनाया है। सारी दुनिया के लेखकों ने अंग्रेजी में लिख लिख करके उस भाषा को समृद्ध बनाया, और उसके कारण सारी दुनिया में एक प्रेशर की, दबाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। और हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आज अनुवाद की बड़ी जरूरत, बड़ी आवश्यकता हमें महसूस होने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बतलाया गया है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। भारत में जिन लोगों ने इंग्लिश में बड़ा काम किया, विज्ञान और तकनीकी में इंग्लिश में किताबें लिखी, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो आज बड़े नाम दिखलाई पड़ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने हाई स्कूल और 10th तक की शिक्षा अपनी भाषा में पाई थी। बाद में अपनी अंग्रेजी ठीक करके साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, ह्यूमैनिटीज के तमाम विषय और सोशल साइंस की किताबों को इंग्लिश में लिखा। आज मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं वो धर्मपाल की पुस्तक है, और धर्मपाल की पुस्तक 10 भागों में लिखी गई। उन 10 भागों का अनुवाद भारतीय लोगों ने किया। संपादन उसका इंदुमती काटदरे, यह अहमदाबाद में रहती हैं, उन्होंने किया। अ ब्यूटीफुल ट्री जिसकी बहुत चर्चा होती है, उसका अनुवाद पहले गुजराती में, फिर हिंदी में हुआ, और उसके अनुवादक हैं रजनीकांत जोशी और कृष्णपाल सिंह भादौरिया। धर्मपाल जी ने अपने जीवन का लंबा समय भारतीय शिक्षा, विशेष करके 18वीं और 19वीं शताब्दी में ढूंढने की कोशिश की। ये 10 वॉल्यूम में 10 भाग
मेरे पास है, भारत की शिक्षा को किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। कई बार हमको लगता है कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, शिक्षा, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए होते तो हमको नहीं मिलती, लेकिन यह मिथ्या है। चूंकि हम उसी प्रभाव में पढ़ते और लिखते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वे उस भाव भंगिमा के नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जो उनकी ट्रेनिंग है वो भारत केंद्रित, इंडिया सेंट्रिक जिसको कहते हैं, उस तरह से हुई नहीं। इस कारण से उनके मन में भी यह बसा हुआ है कि अंग्रेज और अंग्रेजी नहीं आई होती तो हम भारतीयों का क्या होता। मुगलों के अंतिम समय में जब बहुत ही देश में उथल पुथल था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगभग 23% के आसपास थी। शिक्षा का माध्यम निश्चित रूप से अंग्रेजी नहीं थी। अलग अलग प्रांतों में उन प्रांतों की भाषाएं थीं। हिंदी थी विशेष रूप से। आज भी हिंदी भाषी 10 प्रदेश हैं, तो जाहिर है कि हिंदी बड़ी संख्या में रही होगी। संस्कृत माध्यम के विद्यालय बड़ी संख्या में थे और इन विद्यालयों की संख्या 1757 अंग्रेजों के जमने का समय भारत में हम लेते हैं और 1947 में वे गए। अंग्रेज भारत आए और भारत में अपना शासन चलाने लगे। तब भारत में 5 लाख, फिर से दूर आता हूं, 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। उस समय देश की आबादी 20 करोड़ से कम थी और तब म्यांमार, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। 20 करोड़ आबादी के लिए 5 लाख प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, जाहिर है उसे देखते ही अंग्रेजों के होश उड़ गए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है। बिहार, बंगाल में 1 लाख विद्यालय थे। ये सारा का सारा सर्वे धर्मपाल ने किया। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वर्धा आश्रम में रहते थे। भारत आने पर देश भर का भ्रमण करते थे। ब्रिटेन में लंबे समय तक रह करके उन्होंने लिखा और लिखने का बड़ा कारण यह था कि महात्मा गांधी जी ने अपने किसी व्याख्यान में कहा था कि अंग्रेजों के आने के साथ ही भारतीय शिक्षा का रमणीय वृक्ष समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी को भारतीय शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था के बारे में बहुत गहरी जानकारी थी। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा और इस बात को ध्यान में रखकर धर्मपाल ने काम करना प्रारंभ किया और इस काम के परिणाम स्वरूप कुल 10 भागों में उनकी पुस्तकें आईं। 10 वॉल्यूम है। उनका हिंदी अनुवाद है भारतीय चित्त
मानस एवं काल। 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्र विज्ञान, तंत्र से मतलब जादू टोना नहीं है, यह तंत्र स्किल से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में असहयोग, रमणीय वृक्ष, 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा, यह भाग बहुत चर्चित हुआ। और आज भी जिनको लगता है कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले बंदर और भालू नचाने वाला देश था, उसको रमणीय वृक्ष, ब्यूटीफुल ट्री पढ़ना ही चाहिए। 5वां भाग पंचायत राज एवं भारतीय राजनीतिक तंत्र, भारत में गो हत्या का अंग्रेजी मूल, भारत की लूट एवं बदनामी, गांधी को समझें, भारत की परंपरा एवं भारत का पुनर्बोध। ये 10 वॉल्यूम है और इस 10 वॉल्यूम के जो स्रोत सामग्री है, जो रेफरेंसेज है, उसका 80 से 90% हिस्सा विदेशी लेखकों से लिया गया है। यानी विदेशी लेखक भारत के बारे में क्या सोचते थे, उनके सर्वे क्या थे और भारत में किन किन लोगों से वे मिले, इसके साथ ही ये सब करके वे भारत की शिक्षा को किस प्रकार से नष्ट कर देना चाहते थे, योजना पूर्वक नष्ट करना चाहते थे, उस पर पूरा का पूरा ये सर्वे है और पूरा का पूरा डाटा धर्मपाल ने इकट्ठा किया है और बतलाया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को नष्ट किया और शिक्षा को नष्ट करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। ये भारत को अंग्रेजी तो पढ़ाना चाहते ही थे, भारत को ईसाई बनाना चाहते थे। इसके साफ साफ संकेत उनके ही रेफरेंसेस से, उनके ही संदर्भों से धर्मपाल ने दिया है। हम में से अधिकांश लोग जो आज भी अंग्रेजी की तरफ इस दृष्टि से लट्टू हैं, मोहित हैं, खींचे जा रहे हैं कि अंग्रेजी तो केवल एक भाषा है। मुझे लगता है कि भारत में अंग्रेजी तो केवल एक भाषा है। इस रूप में न तो अंग्रेजों के समय पढ़ाई गई और न आज पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी पढ़ाते समय हमेशा ही भारतीय भाषाओं को हीनतर बतला करके, कमतर बतला करके अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उसके पढ़ाने के साथ केवल भाषाओं को हीन नहीं बताया जाता, पढ़ाने वाले भारतीय होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी, मंदिर में रोज जाते हुए भी अपनी उपासना पद्धति, अपने संस्कार, उसके विरोध में बोलते हुए भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कारण ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति को लेकर आई। संस्कृति केवल वस्त्र का पहनावा नहीं है, ये तो सभ्यता है। भीतर तक किस प्रकार से वो प्रविष्ट हो गई, हमारे भीतर किस तरह से जड़ें बना ली, इस बात को धर्मपाल ने लिखा और उसके अनुवादकों ने पूरा पूरा ध्यान रखा कि ठीक तरह से अनुवाद किया जाए। जो पहला भाग है उसमें भारतीय चित्त, मानस एवं काल, बिल्कुल संस्कृत की सरल शब्दावली, भारतीय चित्त, मानस और काल। हर देश का अपना एक चित्त होता है, हर देश का अपना एक मानस होता है। यह चित्त और मानस हजारों वर्षों में उस संस्कृति के द्वारा निर्मित होता है। उसमें पहले ही भाग का पहला अध्याय, यह 20वीं 21वीं शताब्दी है किसकी, इस पर उन्हीं के संदर्भों से चर्चा की गई है।
अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, विदेशी दृष्टि से हम भारत को जानने की कोशिश करते हैं। इसकी चर्चा अब होने लगी है कि जब तक संस्कृत महान भाषा है, कालिदास महान है, तुलसीदास महान है, से लेकर योग तक की चर्चा विदेशों से नहीं होती है, हमें नहीं लगता कि भारत में भी कुछ महानता के गुण हैं। यहाँ तक कि गंगा जल की प्रशंसा भी जब विदेशी करेंगे तब हमको लगता है कि गंगा जल कुछ महत्वपूर्ण जल है और पानी से पृथक उसकी सत्ता है। महत्व सही जवाब का नहीं, सही सवाल का है। यह एक अध्याय है। अपने चित्त को समझे बिना भारत का काम नहीं चलेगा। इसकी चर्चा धर्मपाल जी ने की है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता से वंचित होने की चिंता धर्मपाल जी की है। इसके अलावा जारी है गांधी पर नेहरू के हमले, इसको भी समझने की जरूरत है। भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था, भारत का पुनर्निर्माण, हमारे सपनों का भारत, अंग्रेजी शासन और भारतीय तंत्र व्यवस्था, कहाँ है पश्चिमीकरण की जड़ें। इन विषयों पर अंग्रेजी में धर्मपाल ने लिखा और उसका अनुवाद भारत में हुआ है। यह अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं को बल देने वाला अनुवाद है, क्योंकि इससे एक साथ भाषा, इतिहास, संस्कृति, कला, संगीत की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वाभिमान की शिक्षा प्राप्त होती है कि भारतीय स्वाभिमान कितना बड़ा था। धर्मपाल ने अपने खोज के आधार पर लिखा है कि भारत में उच्च शिक्षा के अध्ययन में जो पुस्तकें लाई जाती थी उसमें वेद के अलावा तमाम महाकाव्य हैं, व्याकरण की पुस्तकें हैं। भारत में पर्शियन और अरबी की भी अच्छी शिक्षा दी जाती थी और यह शिक्षा ईरान और अरब के देशों की जैसी थी। उनकी पुस्तकों पर भी उन्होंने चर्चा की है। बंगाल और बिहार की तत्कालीन शिक्षा पद्धति का एडम का जो ब्यौरा है, एडम का ब्यौरा एडम्स रिपोर्ट्स के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस रिपोर्ट को भी उन्होंने अपनी पुस्तक का हिस्सा बनाया है। और रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल 1836 एंड 1838, इस शीर्षक से जो पब्लिश है, उस पूरे के पूरे आंकड़े को उन्होंने प्रस्तुत किया। एडम प्रथम का विवरण, एडम द्वितीय का विवरण, एडम तृतीय का विवरण भी इसमें है। भारत में जो भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, खास करके बंगाल में, उसमें बंगाली, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और ये शिक्षा कक्षा 8 तक इन भाषाओं को की दी जाती थी। साथ साथ उड़िया भी इन प्रदेशों में पढ़ाई जाती थी। विद्यालय शिक्षा के 4 स्तर अंग्रेजों के आने के पहले थे। संस्कृत पाठशालाओं में न्याय शास्त्र, साहित्य, पुराण, वक्तृत्व कला, शब्द शास्त्र, वेदांत, तंत्र विद्या, मीमांसा, आयुर्वेद पढ़ाए जाते थे। और आयुर्वेद के कारण भारत सुरक्षित और स्वास्थ्य की दृष्टि से संरक्षित था। अंग्रेजों ने कोशिश की कि भारत में जो कुशल कारीगर हैं उनका राजस्व घटा दिया जाए, भारतीय लोगों के हुनर में, भारतीय लोगों के कौशल में कैसे कमी आवे, इसकी पूरी कोशिश अंग्रेजों ने की। चेन्नई के कलेक्टर ने तो लिखा कि ऐसी स्थिति बना दी गई है
कि चेन्नई के लोग संघर्ष की स्थिति में नहीं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से वे बदतर स्थिति में जी रहे हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज भारत में शिक्षा देना चाहते थे? बस तो उतनी सी शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनका राजकाज ठीक से चल सके। धनपाल जी ने ब्रिटेन जाकर के वहाँ के तमाम पुस्तकालयों से ये सामग्री एकत्रित की और भारत में कितने प्रकार के कारीगर थे, जिन कारीगरों को विनष्ट करने की पूरी कोशिश अंग्रेजी सत्ता ने की, जिसमें पत्थर तराशने वाला, लकड़ी चीरने वाला, कुआं तालाब खोदने वाला, चूना बनाने वाला, बांस का काम करने वाला, बढ़ई, संगमरमर की खान में काम करने वाला, चमकीला कपड़ा बुनने वाला, रेशम बुनने वाला, जुलाहे, नील बनाने वाले, हाथकरघा बनाने वाले, मुलायम कपड़ा बुनने वाले, दरी, कालीन, कंबल, डोरी के पर्दा और बोरे बनाने वाले। इसके अलावा जो कारीगरों की सूची है, जिसमें कागज बनाने वाले, पटाखे, दर्जी, तेली, बनौषधि इकट्ठा करने वाले, चंदन की लकड़ी पर काम करने वाले, अगरिया, धोबी, नाविक, शराब बनाने वाले, साबुन बनाने वाले, चावल पीसने वाले, मछुआरे, चटाई बनाने वाले, चित्रकारी का काम करने वाले, घोड़े की नाल बनाने वाले, पीतल का काम, लोहे की भट्टी में काम, कच्चे लोहे के कारीगर, लोहे की सलाखें, तांबे के कारीगर, लोहार, सोनी, शीशा आदि, रुई साफ करने वाले, इन तमाम कारीगरों के काम पर इस अंग्रेजी शिक्षा का असर पड़ा, अंग्रेजों के कुशासन का असर पड़ा और धीरे धीरे भारत की शिक्षा विनष्ट होती चली गई। कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने खोले और उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से कुछ लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की, वे शिक्षा प्राप्त लोग पिछले 150 वर्षों में हमें दिखलाई पड़ते हैं और उनके आधार पर कई बार हम चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की बहुत अच्छी शिक्षा दी, रेलवे लाइन बिछा दी, लेकिन वे 5 लाख प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजों की सत्ता के 200 वर्ष में किस तरह से विनष्ट हो गए, इसके इतिहास को जानना हो और इसके परिणाम को जानना हो तो धर्मपाल की पुस्तक के 10 भाग को पढ़ना चाहिए। इस अनुवाद ने भारतीय भाषाओं में पढ़ने लिखने वाले लोगों के स्वाभिमान को जागृत किया है। भारतीय समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीति शास्त्रियों के सामने एक बड़ा विषय रखा है। आज इस तकनीकी क्षेत्र में प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कुछ विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।